recording. Okay. So hello friends, welcome. So in this class, good evening. So in this class, we are going to see the IBPS SOIT main mock test 4. So here we are going to see the 60 questions which are important from exam point of view. So in your exam, there will be 60 questions. So we are going to see the 60 question. And this is also applicable for all IT examination. So कोई भी आपका IT का हो, चाहे आपका सेबी का एग्जामिनेशन हो, नाबार्ड का हो, या आपका एसबीआई हो, एनआईसीएल हो. So this video is also applicable for all IT exams. Okay, so I will show you the question and you need to give the answer. And here I want you to give the answer. Okay, Shraddha, good evening. A, B, C, D, like whatever the answer you have. So please give the answer. And if you want explanation in any question, please let me know. I will explain that question. And see, I don't know all 60 questions, so some question I will skip because as you know that syllabus is very vast and it is impossible to any individual to know each and everything. ठीक है, तो जो चीज मेरे को नहीं आती मैं उसमें आपको बता दूंगा भाई मेरे को नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द चीजें मेरे को आती है. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट. So according to you, what is the answer of this question? So I guess this is easy. This is the question from DBMS here. The first answer where PDF is not available. B. B. So everyone is saying B that. So I guess B is the right answer. Okay, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें explanation करूं. तो easy क्वेश्चन. Start आपका easy था. ठीक है, moving ahead. This is question from again DBMS एसिड प्रॉपर्टी क्वेश्चन है. देखो आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें ये एसिड प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन हमेशा आता है. 1 मार्क्स ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम द एसिड प्रॉपर्टी. ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा. एक का डी आया है. एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी सेकंड एटॉमिसिटी सेकंड का एटॉमिसिटी. ओके, so all you are saying acid property, so I guess is answer is the acid. So no need. See, if you need any explanation in any question, please let me know. ठीक है, otherwise I will assume आपको आता है. ठीक है, because we have to save time also. Could you please atomicity explain? Could you explain atomicity? Because I forgot the definition. Okay, why atomicity? Okay, ठीक है. See, एक भी स्टूडेंट बोलेगा atomicity, so I have to stop. देखो, ACID acid. A means atomicity. तो atomicity बोलता है कि let's suppose you have a bomb. You have a bomb and let's suppose you have a एटम बॉम्ब. तो इसमें दो केस होंगे, या तो ये ब्लास्ट हो जाएगा या ये फुस हो जाएगा. ठीक है, एक चीज होगी, आपके पास में कोई बॉम्ब है, या तो ब्लास्ट हो जाएगा या ये फुस हो जाएगा. तो एसिड प्रॉपर्टी कहता है लेट्स सपोज यू गो टू एटीएम एंड यू वांट टू विड्रॉ रुपीज. आपको विड्रॉ करने हैं 2000 रुपये. या तो विड्रॉ हो जाएंगे या विड्रॉ नहीं होंगे, एक ही केस होगा. तो ऑटोमेटिसिटी से दैट एनी ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस इन सिस्टम आइदर इट शुड कंप्लीट और इट शुड रिजेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में रह जाए. मिडल वाला स्टेटमेंट कभी नहीं आना चाहिए. एग्जाम्पल, लेट सपोज यू आर डूइंग ए यूपीआई पेमेंट. अब आपने देखा कि वहां पे आ रहा है, लोडिंग आ रहा है. आपने वेट किया, 10 सेकंड हो गए वेट किया, 20 सेकंड हो गए वेट किया, 1 मिनट हो गया वेट किया, 1 आवर हो गया वेट किया, 1 मंथ हो गया वेट किया. ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी रीच. आइदर द पेमेंट दैट यू वांट टू डू, आइदर इट शुड कंप्लीट or either it should reject. Intermediate state should not be there. Atomicity say that there should not be any intermediate state. So when you are doing an online shopping transaction,
So system deducted amount from your balance. So let's suppose you are having account with SBI, and I am having account with, let's suppose, SDFC. So you are here and I am a shopkeeper. So and here we are having the NPCI. Now money is debited from your account इन बिटवीन द सर्वर क्रैश. इन बिटवीन हो सकता है कि ये क्रैश हो गया हो, या मे भी हो सकता है ये क्रैश हो गया, एनीथिंग कैन क्रैश. बिकॉज ऑफ दैट द ऑर्डर जो है वो डिस्पैच नहीं हुआ है. सो अब क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा. सो दे विल बी रिवर्स ऑफ ट्रांजेक्शन. So your account is going to be get credited immediately, or you will receive a SMS. You will receive a SMS that because of some error, the amount is not able to credited into this account. So you will receive the amount in this XYZ minute or hours. So this is say atomicity. Okay. Uh, Jaideep, it is now clear. Okay, good. So I will move ahead. ओके. श्रद्धा कह रही है कि प्रीवियस ईयर में आस्क हुआ था. ओके. हाँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आया हो. तो इसको अपन मान लेते हैं PYQ क्वेश्चन ऑफ IBPS SOIT. ठीक है. क्वेश्चन 3. ठीक है, क्या आंसर है? किसी का कुछ और तो नहीं है, सब भी कह रहे हैं ना. ठीक है. सो द फर्स्ट आंसर गिवन बाय अनामिका. अनामिका वेरी गुड. एंड लास्ट इज आयुष. आयुष वेरी गुड. फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है. आपका बी आ रहा है ना? ठीक है. द फर्स्ट आंसर गिवन बाय गौरव एंड शोविक. लास्ट शोविक. वेरी गुड. Moving ahead. This thing I have explained in very detail. I have made 2 hour video. So in that I have explained this in detail. So from basic to advanced question we have discussed. So we are having one video of 2 hour and another video of 2 hour of advance. तो 4 hours में आपका रिलेशन अलजेब्रा पूरा हो गया है. ये क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है. ऑलिव स्कोर कितना आ रहा है यार, ये है ही नहीं क्वेश्चन. आयुष, यू आर आउट ऑफ द बॉक्स. सिलेक्शन बी. ठीक है. Yes. So the first answer is given by Gaurav. Last is Rahil. Okay, guys. Nice. Sixth question. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है.
सबका स्पाइरल आ रहा है ना? बिग बैन नहीं, बिग बैन इज स्पाइरल विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, यहाँ पे देखो बी डी आ रहा है। डी इज ऑल्सो राइट। ऐसा नहीं है कि डी इनकरेक्ट है, डी इज ऑल्सो राइट, बट स्पाइरल इज मोर एक्यूरेट। बिकॉज क्यों, इसमें आपकी जो इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स के लिए स्पाइरल थोड़ा सा और अच्छा माना जाता है। ठीक है, सी डी इज ऑल्सो राइट, बी इज ऑल्सो राइट। हो सकता है कि आपका एग्जाम में मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ए बी या ए सी या ए डी, या आपको मिल जाए बी डी। तो यू हैव टू टिक, बट स्पाइरल इज मोर एक्यूरेट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। What is farming attack? I didn't hear this term in cybersecurity. ओके, so in this attack what happened, we are having DNS. So whenever a user request for any website, let's suppose you hit a website and we are having a DNS resolver. Sometime someone will corrupt this file and replace the original file with some another fake IP address, fake server IP address. So whenever you want to hit, it will give you the wrong entries. It will give you the wrong entries. So the website that you want to visit, it will look legitimate to you, but it will be a fake website. So B is the answer of this question. And then it is called a server side request forgery, na? I think. Hmm. Why it is called what is called farming attack? Yeah, because नाम है यार, farming अलग is अलग नाम दे दिए उन्होंने। जैसे आपका एक अटैक होता है, डीडोस अटैक होता है, एक आपका ये अटैक होता है, एक आपका ये अटैक होता है, किसी ने उसको नाम दे दिया। और जैसे आपका एक अटैक होता है, फिशिंग होता है, तो इट इज अ नेम। अब आपका नाम जैसे राहुल है, अब राहुल क्यों है इसका मतलब कुछ आंसर नहीं है ना। मतलब किस जिसने मनाया है उसने इसको नाम दे दिया कि चलो इसका अटैक को हम ये नाम देंगे। तो सेम अटैक कैन हैव मल्टीपल नेम ऑल्सो। तो मतलब जैसे आप बोल दो, जैसे राम है, लक्ष्मण है, हनुमान है, ये सब क्या है, ये सब आपके गॉड है तो गॉड, उनके अलग अलग नेम है, बस वही चीज है। ठीक है, अब बी आया था ना किसी का? B। ये क्या क्वेश्चन है? ओके ओके, ये अच्छा क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, एट का डी है ना, कोलिजन अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन, यस, सबका डी है ना, ओके। टोकन भी तो हो सकता है ना? टोकन एक पास तरह से। आपका यूजुअली किस में होता है, रिंग के अंदर होता है। अच्छा, बस टोकन, ठीक है सर, सॉरी। क्योंकि जो क्वेश्चन में क्या यहाँ इसने ये लिख दिया, बस लिख दिया। ठीक है सर, तो जो ठीक आपका रहता है टोकन रिंग में होता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सी का क्वेश्चन है। यार सी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। एस्ट्रिक मतलब होता है पॉइंटर होता है। ये एरे है,
एरे ऑफ पॉइंटर है। एरे कितने का है? 10 का है, एरे ऑफ पॉइंटर है। और ये क्या है? ये आपका फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल एरे ऑफ पॉइंटर, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? बी। आपका भी बी आ रहा है ना दोस्त? 9th का बी। बी बी बी। श्रद्धा का बी। देखो इसमें क्या है, श्रद्धा हो क्या रहा है? देखो, आपके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक अपने पास लैंग्वेज आती है C++। उसमें क्या है? उसमें होता है अपने पास में पॉइंटर्स होते हैं, जिसको हम एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो होते हैं पॉइंटर, ये हमेशा किस पे गेम प्ले करते हैं? एड्रेस पे गेम प्ले करते हैं। तो एड्रेस को हम ऐसे सिंबल करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास में एक एरे है, मान लो कि मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ये लिख दिया 10। तो व्हाट दिस रिप्रेजेंट एरे। अब क्या होता है, अपने पास यहाँ पे फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब जो फंक्शंस होते हैं उनके फंक्शन कॉल होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो दिस वी कैन से फंक्शन कॉल। मान लो आपका कोई भी फंक्शन है एबीसी, यू वांट टू मेक अ कॉल ऑफ फंक्शन एबीसी। ये जो रिप्रेजेंट है, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये है आपका, ये एरे ऑफ क्या है? पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे कि इन विच ऑप्शन आई कैन सी बोथ थिंग, कौन से ऑप्शन में आपको फंक्शन भी दिख रहा है और एरे भी दिख रहा है? एरे यहाँ पे, बट यहाँ पे कहीं फंक्शन नहीं, बट यहाँ पे फंक्शन नहीं। तो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन यू कैन टेक द बी। ओके। ओके, श्रद्धा, इट इज क्लियर? So I will move ahead. So this is a question of cloud computing. Easy question है. Some questions will be easy. So C सबका C है. Okay, nice. First answer given by Shovik. Very good, Shovik. Which transport lay guarantee reliable order and error checking delivery of data between application? Easy है. देखो एग्जाम में क्या है, कुछ क्वेश्चन पोर्ट नंबर के भी आ सकते हैं, पोर्ट नंबर के। तो एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का क्या पोर्ट नंबर है, किसी को याद है? C व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ 80. 80? गुड। देखो, कुछ इजी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आ सकता है पोर्ट नंबर का। अब दे आर लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें इन पोर्ट नंबर, सो इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर व्हाट ही वांट टू आस्क। बट एग्जाम से पहले 1 आवर में आप देख लेना कि पोर्ट नंबर क्या रहता है, आज भी देख लेना, लिख लेना कहीं पे ना। SCTP is commonly used in which of the following? SCTP. S ये नहीं आता मेरे को। देखो एग्जाम में आपको स्किप भी आना चाहिए। तो मेरे को नहीं आ रहा है। वेब ब्राउजिंग में तो कहीं आता नहीं है ऐसा। इन दोनों में कहीं हो सकता है ना। फाइल में तो FTP होता है, FTP होता है, SFTP भी हो सकता है। SFTP TP से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल करके कुछ हो सकता है, मे बी, पता नहीं। आपका किसी का आंसर है क्या? फुल फॉर्म स्ट्रीम कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, UDP। अच्छा, ठीक है। स्ट्रीम कुछ कह रहे हैं, सो इसको स्किप कर रहा हूँ, नहीं आता दोस्त, नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13. क्वेश्चन डीएसए का है. आंसर आ गया होगा. बी. बी आंसर आ रहा है क्या? देख लेते हैं. टैक है. 4 आया. 5 आया. 2 आया. एस्ट्रिक आया. एस्ट्रिक आते ही 4 हो गया. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 हो गया. 10 हो गया. फिर 3 आ गया. 3 आते ही, नहीं इसने पूछा ना, आफ्टर एस्ट्रिक. आफ्टर एस्ट्रिक क्या आ रहा है? 10. पॉप करेंगे जब, तो आएगा, पहले आएगा 10 आएगा, उसके बाद 4 आएगा. ये आ रहा है दोस्त. स्टैक में देखो, स्टैक में वेन एवर यू वॉन्ट टू रिमूव, स्टैक में होता है क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट. तो ये आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है. 13 का ए. हाँ वो लास्ट इन फर्स्ट, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सेम चीज है. लास्ट इन, फर्स्ट इन लास्ट आउट कर लो, या लास्ट इन फर्स्ट आउट कर लो, बोथ आर सेम. ओके. ये कुछ नया वर्ड बना दिया मैंने. ओके. सो आई विल मूव अहेड. क्वेश्चन 14. आईओटी में कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? ट्रांसपोर्ट मैसेज क्यू. मैसेज क्यू. ट्रांसपोर्ट कुछ होता है करके, मैसेज क्यू ट्रांसपोर्ट यूज रहता है. तो इट इज यूज फॉर आईओटी डिवाइसेस. ये याद कर लेना ना, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में ऐसा आपको दिखने को मिल जाए एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन. चलो अब इतना. एसएमटी का बता दो क्या पोर्ट नंबर है? पोर्ट नंबर ऑफ एसएमटीपी. 14 एसएमटीपी पोर्ट नंबर. 25 25. ठीक है, चलो याद है, किसी को याद है. क्वेश्चन 13. शोविक कह रहा है. शोविक आई हैव एक्सप्लेन ना. यू वांट अगेन एक्सप्लेनेशन? शोविक, थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया. सी होता है क्या है, अपने पास स्टैक होता है दोस्त. ठीक है. स्टैक में क्या है, जैसे मैंने कुछ इंसर्ट किया, मान लो मेरे पास है ए बी सी डी ई. इफ आई इंसर्ट एनीथिंग, so it will come, then B, then C, and if I want to pop, उसमें क्या होगा, जो टॉप में एलिमेंट होगा वो आउट हो जाएगा, तो C आउट होगा. तो इन दिस टैग I will have A and B, and again if I want to do the pop, again B will be the out. So in this tag I will have only A. So same thing, we are having a number over here, so we are going to insert the value. So first we will insert 4. After 4 we are having 5. I will insert 5. After 5 I will insert 2. After that I have multiplied. I have multiplied. So whenever a symbol come, so we are having priority of the symbol. तो जैसे आपका एक सिंबल आ गया यहाँ पे, तो यू नीड टू डू सम ऑपरेशंस, आपको कुछ ऑपरेशंस होंगे करने. सो इसमें आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पे आपको यू नीड टू डू द मल्टीप्लीकेशन. तो 2 into 5 it will become 10. So in this stack I will have 4 and I will have 10. एंड क्वेश्चन कह रहा है
the top two elements immediately after the multiplication. So after the multiplication, top two elements. So whenever I will do the pop, so the first element will be the 10 and my second element will be the 4. So this is my top first element and this is my top second element. So answer will be the 10 and 4. Okay. सर Shovik, this आपने यस yes, Shovik. कुछ पूछ रहे हो क्या? यस सर यस सर वो पहले जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा था स्टैक में उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया पिछले बार जो लास्ट आ रहा था उसमें 3 के बाद आपने एडिशन किया था उस नहीं, वो क्या है, मैंने एडिशन नहीं करना था क्योंकि क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है। क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है, इट इज नॉट आस्किंग यू टू गो अहेड, इट इज जस्ट आस्किंग व्हाट विल हैपन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। तो ये जो चीजें अपने लिए, दिस इज यूजलेस, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, तो इट इज आस्किंग जस्ट ओनली। क्वेश्चन 15, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉक का बहुत बार क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन आस्क अ लॉट ऑफ टाइम इन लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस। जब भी आपका फॉक फेल होगा, इट विल गिव यू ए -1। तो why? Because whenever we create a fork, it is going to create a new child process. So when a fork fail, it is not going to return, it is not going to create a new child. So it will return -1. So A will be the right answer for this question. 10 का A. ये आया ना? Yes. Okay, Gaurav. Okay, Rahil. I assume it is clear. Moving ahead. Question 16. कोई भी ऑपरेशन होगा, फर्स्ट मेथड क्या होगा? डीएनएस लुकअप रहेगा। जैसे यूजर ने क्लिक पे क्लिक किया, एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उस फंक्शन में क्या, जो मेल है, यू वांट टू send a mail to a specific URL, so you will have some URL. So first thing, it is going to check for the DNS lookup. So B will be the answer here. User click, जैसे ही send पे click करेगा तो first thing will occur DNS lookup. 16 का B, ये अनामिका गौरव का है B. ओके नाइस. शोएब का B है, गुड. शिवम का B आ गया, नाइस. क्वेश्चन 17.
इजी है। एरर दे देगा एट द कंपाइल टाइम, रन टाइम पे नहीं देगा, तो उसे कंपाइल पे आपको एरर दे देगा। प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। प्राइवेट मेथड कभी भी इनहेरिट होते ही नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग। प्राइवेट मेथड इनहेरिट नहीं होते, दे आर लिमिटेड टू दैट क्लास ओनली। Yes, sometime let's suppose in C we can create a front function and we can call, but even I can say they are made so that they can access within the same class. They are not accessible outside the class or outside the package. Okay. A explanation देखो यही है। देखो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। तीन चीजें होती हैं, एक होता है पब्लिक, होता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, एक होता है प्राइवेट। देखो यहाँ लिखता हूँ सेम क्लास, सेम पैकेज, साइड पैकेज। पब्लिक सेम क्लास में एक्सेस हो सकता है, यस। सेम जो है आपका पैकेज, सो अनदर क्लास कैन एक्सेस पब्लिक, यस। आउटसाइड द पैकेज अनदर क्लास कैन एक्सेस दिस, यस। प्रोटेक्टेड सेम क्लास, यस। इन द सेम क्लास अनदर क्लास कैन, यस। आउटसाइड द पैकेज, नो। प्राइवेट इन द सेम क्लास, यस। आउटसाइड द पैकेज, नो। एंड इन द सेम पैकेज, नो। ये याद कर लेना, ठीक है। तो मूविंग अहेड, इजी क्वेश्चन। इफ यू हैव टच, अगर आपने कभी टच किया है सीपीयू शेड्यूलिंग को, जस्ट टच किया है, टच, यू हैव टच द सीपीयू शेड्यूलिंग, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। इनका सी आ रहा है सबका, यस। अनामिका का, अमृता का सी आ रहा है, नाइस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, बी, सबका बी है, यस। ये कौन सा क्वेश्चन है? सी का क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। एक फंक्शन है फ्लोट, इट इज हैविंग एक्स एंड एन।
वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना इसमें तो। इसमें ना फैक्टोरियल तो मेरे को नहीं दिख रहा कहीं पे भी। एंड प्रोडक्ट भी नहीं दिख रहा, x2i 1 to n, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट बिकॉज वी आर हैविंग द एडिशन ऑफ हेयर। फर्स्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज 1 + x। 1 + x भी अपन को नहीं मिला कहीं पे ना। We don't get x and there is nothing x power 2. So by option elimination we can say B is the right answer for this question. आपका भी B आ रहा है क्या? स्किप स्किप कर दोगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 21, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम पाइथन। So for this I have already made a 2 hour class, वो वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। बी आ रहा है ना आपका भी? बी बी बी, क्या बात है, सब स्मार्ट हो यहाँ पे। एवरीवन इज स्मार्ट हियर, नाइस। द फर्स्ट आंसर गिवन बाय गौरव, वेरी गुड गौरव। 22। This is the question from OS. बी, बी आ रहा है, नाइस। 21 एक्सप्लेन, 21 क्या था? अपने पास एक एरे है मैडम, एरे है 10, 20, 30। इसमें क्या इंडेक्स होता है? इंडेक्स है 0, 1, 3। अब इसी में क्या, माइनस इंडेक्स भी चलता है, -1, -2, -3, -4। सो here he want to print a -2 index। ए एरे है, एरे का -2 इंडेक्स कौन सा है? ये वाला। व्हाट इज द वैल्यू? 30। ओके, मूविंग अहेड। ओएस, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से क्या इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है? वेटिंग टाइम। आपका सी आ रहा है, बी तो नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय पवन, वेरी गुड पवन। क्वेश्चन 24, दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट CSC 2010।
ये है ना सबका, डी सी shortest remaining time first can cause starvation, yes. Preemptive scheduling can cause starvation, yes. Round robin is better than response time में yes. डी होगा दोस्त, डी. You want explanation or it is clear? जो भी को explanation चाहिए. देखो एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ ना, एग्जाम्पल देके बताता हूँ. एक प्रोसेस है P1, उसने बोला आई विल टेक 100 सेकंड टू एग्जीक्यूट. एक सेकंड है P2, उसने बोला आई विल टेक 50 सेकंड टू एग्जीक्यूट. तो CPU आया, इसको दे रहा है, तो CPU गॉट P2. आफ्टर 10 सेकंड अनदर प्रोसेस कम P3, उसने बोला आई विल टेक ओनली 20 सेकंड टू एग्जीक्यूट. सो CPU विल स्विच टू P3, it will execute. So let's suppose this is executed. Then again this will become 40. So CPU will again allowing to P2. It is get executing. Another a process can P4. It say I will take 80 seconds. So it will execute it. Let's suppose this got executed. After that CPU is going to execute to P4. Let's suppose it is execute for 40 seconds and another process come P5 for 60 seconds. So it will switch to 60, then it will execute again P4 to complete it. But P1 देखो जो सबसे पहले आया था, the process which comes सबसे पहले, it is still waiting. ये अब तक वेट कर रहा है. So starvation is there. Okay. Shovik, now it is clear to you, my friend. Okay. Moving ahead. सर हाँ. प्रिमिटिव के केस में क्या होगा? प्रिमिटिव में एनी कॉज स्टारवेशन Preemptive में होता है क्या है? In preemptive, CPU can switch from one process to another process. So this is a case of again preemptive scheduling. So in which CPU is switching from one to one. अगर यहीं पे मैं लिख देता कि नॉन प्रेम्पटिव, इसी स्टेट में मैं लिख देता कि नॉन प्रेम्पटिव शॉर्टेज रिमेनिंग फर्स्ट रिमेनिंग टाइम. सो बाय डिफॉल्ट shortest remaining time is a preemptive. It means while executing CPU can switch from one to another. Okay. और नॉन प्रेम्पटिव होता है तो उसमें स्टारवेशन नहीं आता, बट उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है आपका. तो एवरी थिंग हैव सम प्रोज एंड कॉन्स. ओके, मूविंग अहेड. क्वेश्चन 25. क्वेश्चन 25 मैं बता देता हूँ इसमें हो क्या रहा है. एक स्टैक है, अगर उसकी वैल्यू नल नहीं है तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं. सो वी आर शोइंग द लिस्ट. तो वी आर जस्ट शोइंग द लिस्ट. ठीक है, तो जो वैल्यू है वो वैल्यू को अपन लेके आ रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे इसमें. ठीक है. 26. This type of data structure is ternary heap. टर्नरी मतलब तीन. हीप है, हीप में क्या होता है, मिन हीप होता है अपने पास में और मैक्स हीप होता है. ये मेरा बन गया टर्नरी हीप. इससे क्या बन सकता, इससे हम क्या बना सकते हैं, हैश
एरे हैश एरे का कोई मतलब ही नहीं है। प्रायोरिटी स्टैक और प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी स्टैक, प्रायोरिटी स्टैक के लिए दो चीजें ले लेंगे, ठीक है। क्यू के लिए दो। या इन सीडी में से आंसर हो सकते हैं इसका, सीडी में से इसका आंसर हो सकता है। तो ये जो चीज है, ये आपके जो अपने जैसे एल्गोरिथम आती है ना, प्रिम्स एल्गोरिथम, वहां पे इसको हम लगा सकते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम पे। वो एक्यूरेट आंसर तो मेरे को प्रायोरिटी क्यू लग रहा है। आप क्या कहते हो 26 का? प्लीज डी। अच्छा, आपका भी डी है क्या? नहीं, इन here you can also zoom from the screen. You can double tap on the screen and you can also zoom. आपकी जो स्क्रीन है, जस्ट डबल टैप ऑन द स्क्रीन, इट विल ऑटोमेटिकली zoom. Data structure in which element can be inserted, deleted, both and but not from. ये 7 DQ है, बी रहेगा इसका, DQ। क्यू में नहीं होता मैडम, इसमें एक एक से होता है, एक से एंटर होगा, एक से एग्जिट रहेगा, ठीक है। इंसर्टेड एंड डिलीटेड बोथ बोला है ना, बोथ बोल रहे हैं। इंसर्टेड अलोन नहीं बोले, और नहीं है यहाँ पे, एंड लगा है। एर नहीं, एंड है। क्वेश्चन 28। मिनहिप में मिलेगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर कहाँ दिख रहा है? 28 ए आ रहा है। नाइस, वेरी गुड पवन। क्वेश्चन 29। इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड पवन एंड किरण अमृता, गुड। तो इफ यू हैव स्टडीड सी, अगर आपने सी लैंग्वेज कभी देखी है, मे बी इन योर बीटेक, इफ यू सम सी, वी आर हैविंग सो मेनी लैंग्वेज, if you studied then you can easily answer. If you have studied somewhere, is a easy question है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि explanation ही required है, सबका ही है। In remote procedure call we are having this call, RPC। ये है ना सबका? 31 A। 29 तो मैडम चला गया क्वेश्चन। फॉर्म है ना इसका, तो रेप्लिकेट करता है ना अपने आप को फॉर्म। फॉर्म रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्वेश्चन 32। Those who work as a developer
At any programming language, they can easily answer this question. इसने वर्क किया डेवलपर बी, अनामिका ने नहीं किया है, इससे पता लगता है। ओके, नो नो प्रॉब्लम अनामिका। अब देखो इसमें होता क्या है, आपकी रेस्ट एपीआई कॉल्स होती हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपकी कुछ रेस्ट एपीआई होती हैं, कॉल होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सो इन विच वी यूजुअली फॉलो द मेथड ऑफ जेसन। तो हम क्या करते हैं वहां से आपके जो रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स है, हम क्या करते हैं जेसन में चीजें लेके आते हैं। और वी कैन, इफ यू आर यूजिंग सम, लेट सपोज नेटफ्लिक्स, और उसमें क्या होता है रेस्ट एपीआई कॉल्स होती हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे जितने भी ये कॉल्स जारी हैं, जितने भी ये हैं कॉल्स, ये आपकी रेस्ट एपीआई कॉल है। जैसे कि ठीक है, हैंग हो गया है शायद, इसलिए विजिबल नहीं हो रहा, तो इसको क्लोज कर देते हैं। हैंग हो गया वो बी। क्वेश्चन 33, व्हाट डज द एचटीटीपी कोड 201 इंडिकेट। देखो आपके कुछ कोड होते हैं, 100 वाले, 200 वाले, 300 वाले, 400 वाले, 500 वाले। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 201 indicates for created. E, REST API. Okay. This is a question from web development. This is, if you work on CSS, अगर हल्का बहुत भी काम किया CSS पे, you can easily answer. A4, A, B. अब आप लोगों ने CSS पे काम नहीं किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल शो यू। एक वेबसाइट है facebook.com, ये आपको दिख रहा है फेसबुक बना हुआ है, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे कुछ वो बना रखा है, बटन बना, जैसे ये फेसबुक है, ठीक है। तो अपन इस पे वर्क करते हैं। तो here when I type the color, मैंने लिखा है इसको रेड, तो दिस विल बिकम रेड। when I type green or gray, it will become gray, और when I type let's suppose white, so it will become white, white smoke, कुछ भी आपको देना कलर। so this is being changed by this property called color। जो कलर प्रॉपर्टी, उससे फॉन्ट कलर करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, we don't have any property by font color, so इसने हाइफन कर दिया, so this is invalid property। okay, C is the right answer।
सो मूविंग अहेड, अनामिका का आंसर सही है। Which keyword is used to declare a variable in JavaScript? में क्या है आपका? ये भी सही है, ये भी सही है। ए एंड डी बोथ राइट है, बट मोर एक्यूरेट अपना वेरिएबल है, क्योंकि क्या होता है, इसका ग्लोबल स्कोप होता है। 35 ए एंड डी। ओके, नाइस 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 पवन, नाइस प्रियांश, वेरी गुड। Which element is used to create a hyperlink? क्या आंसर आ रहा है आपका? 36। ओके, देखो आपका क्या होता है, ए से आपका लिंक क्रिएट होता है, ठीक है। ए टैग, HREF, google.com, hi, dash a. So it means I have create a link which will show like hi. जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, इट विल रिडायरेक्ट मी टू द गूगल वेबसाइट। तो एंकर टैग कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज एंकर टैग। 36 का बी विल बी द आंसर। 7। डिसीजन ट्री। 38 ही लग रहा है मेरे को तो यार। 38। इसमें क्या करना है आपको, बस देखना है कि आईओटी कहाँ यूज होता है। आपको अपना बस कॉमन सेंस लगाना है, एंड यू नीड टू चेक वेयर वी आई टू यूज। आईओटी में होता है क्या यूजुअली? एट सी, सी, सेंसिंग एंड कलेक्टिंग डेटा। 39। Which type of malware disguise itself as a legitimate software but perform malicious action once execute होने के बाद? After executing,
तो सबसे पहले प्रिटेंड करेगा, इट विल प्रिटेंड। इजी आंसर है बी। वेरी गुड। चलो इन्होंने देखो ये भी बना के दिया टॉर्चन। देखो ये देखो अब कोई पूछ सकता है कि सर यही नाम क्यों रखा है इसका, वाई यू हैव पुट दिस। तो फॉर दिस वी आर हैविंग अ स्टोरी, मे बी यू नो। तो ये वाली स्टोरी अगर आपको कुछ याद हो, उसमें यही था कि इन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया था। वो स्टोरी मेरे को भी याद नहीं है, उसमें मतलब एशियन जो ग्रीस में हुआ था। तो दे प्रिटेंड कि हम आपको यहाँ पे गिफ्ट दिया है। तो उनकी जो वॉल थी वो अन ब्रेकेबल थी, सो वो हॉर्स अंदर लेके आ गए थे। सो इट गॉट इनसाइड इन द नाइट, इट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो इन द नाइट इट गॉट एग्जीक्यूटेड, और इसके अंदर उनके सैनिक थे। एंड दे हैव के बाद उन्होंने फिर क्या किया, जो गेट था उसको ओपन कर दिया था, एंड द आर्मी मार्च इनसाइड। ठीक है, अच्छी स्टोरी है इसकी, देखोगे अच्छा लगेगा आपको। वहीं से ये चीज आपकी आई है ना, हॉर्स वाली। 39 का बी। 40। Which protocol provide end-to-end encryption for securing web? Transport layer security। सी। 40 का सी। नाइस। इसने सी आंसर दिया, वेरी गुड। 41। इजी है ऑप्शन, ठीक है, इसके अच्छे ऑप्शन है। फोर्टी वन का बी। नाइस। प्रियांश, वेरी गुड। वन। शिवम। 42। जीरो डे वर्नेबिलिटी क्या चीज है? तो आपने कभी न्यूज में भी सुना होगा, इन न्यूज यू हैव हर्ड दिस। सी। सी। डी। डी, क्या बात है, सब स्मार्ट हो यहाँ पे, वेरी गुड। 43। पिगी बैकिंग इन टीसीपी, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। जी, वेरी गुड। फर्स्ट इज गिवन बाय पवन। 44।
44 ए। और सब स्मार्ट है यहाँ पे। 45 डीएसए क्वेश्चन। क्या बात है, सब स्मार्ट है यहाँ पे बी। Which sorting algorithm best suited for nearly sorted data? में एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका। का भी आंसर दे दो। विच एल्गोरिथम हैज लो कॉम्प्लेक्सिटी और कंप्यूटेशन टाइम, वी कैन से इन वर्स्ट केस। अपने पास तीन केस होते हैं, एक होता है बेस्ट केस, एवरेज केस, एक वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में सबसे कम किसका लगता है आपको? फोर्टी सिक्स ए वर्स्ट केस, सी सी। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? लोएस्ट लोएस्ट देखो, इसमें क्या होता है, क्विक शॉट का देखो, वर्स्ट केस में रहता है क्या है, एन स्क्वायर आपका ज्यादा है कॉम्प्लेक्सिटी। इसका कितना जाता है, एन लॉग एन जाता है। बबल शॉट का कितना जाता है, एन स्क्वायर जाता है। इंसर्शन शॉट कितना, एन स्क्वायर जाता है। बट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। इस क्वेश्चन का डी है, इंसर्शन शॉट। बेस्ट सुटेड के लिए इंसर्शन शॉट रहेगा आपका। डी किसने आंसर दिया था पहले? डी डी डी। अरे डी आंसर है यार। ओनली अमृता एंड सत्या एंड पवन गिव। डी इंसर्शन शॉट रहता है बेस्ट सुटेड। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जितनी एल्गोरिथम है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर हैश टेबल, हैश टेबल है। वन डी, क्या बात है, वेरी गुड। प्रियांश, सत्या, अमृता, शोविक, नाइस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। नाइस, बी। Which matrix indicates how much code is exercised by the test case? Those who have worked as a tester, जिन्होंने काम किया है कभी एज ए टेस्टर,
in any MNC or any startup, they can easily answer. Or if you apply your common sense, नहीं दोस्त, टेस्ट कवरेज रहता है सी। 50 इसको स्किप कर देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है। 50 को स्किप कर दें। काल भी लिया क्या आंसर 50 का? बात है, ये है क्या? पता नहीं, इसको स्किप करते हैं। बिग क्वेश्चन था। 51। इजी है ये वाला। 51 सी। जीरो टेस्ट आर्किटेक्चर विद माइक्रो सेगमेंटिंग। 52 ये अच्छा क्वेश्चन। दिस इज गुड क्वेश्चन। जब आपका हाई वॉल्यूम यहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, तो वहां पे क्या दिक्कत आ सकती है? वहां पे आपको कंकरेंट जो ट्रांजैक्शन उसके प्रॉब्लम आ सकती है। तो राइट स्क्रू। 52 का सी। वेरी गुड शोभिक श्रद्धा। 53 एफटीपी। एफटीपी में क्या होता है? 20 22 23 होता है ना, 20। 53। अरे वेरी गुड पवन। सौरव वेरी गुड। एसएमटीपी अभी अपन ने डिस्कस किया था, आ गया फिर से। ये जितने भी पोर्ट नंबर है ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, ये जितने भी पोर्ट नंबर है दोस्त, सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विच रिकॉर्ड टाइप यूज टू मैप अ डोमेन नेम? तो हम किस में मैप करते हैं? एड्रेस में मैप करते हैं। वी मैप विद द एड्रेस। एन एड्रेस इज गोइंग टू बी मैप विद द आईपी एड्रेस। एड्रेस मैप होगा आपका। 55 का एड्रेस। विच प्रोटोकॉल ट्रांसफर वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू ब्राउजर? सर्वर टू ब्राउजर, ये क्या क्वेश्चन है? विच प्रोटोकॉल? 56। बी सी।
अरे क्या कर रहे हो दोस्त 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 दोस्त। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो कौन लेके जाता है? HTTP तो लेके जाता है। ये जैसे कोई सर्वर है, ये आप बैठे हो, दिस इज वेब ब्राउजर। यहाँ से पेज लेके जाए, किस में जाएगा? HTTP कॉल्स में जाता है। API कॉल्स कहता है, उसमें क्या जाता है? वेब पेज ही तो ट्रांसफर होगा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? HTTP तो यूज हो रहा है। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एग्जाम में गलती मत करना दोस्त। सी। अच्छा, मैक्सिम ने सी दिया है क्या? ओके। रखिल ने शायद डी दिया था। दिस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, वी हैव सीन दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये हडूप वाला ना, ये अपन देख चुके हैं, एक बार याद करो, क्लास में बताया था। दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस 57। सी। श्रद्धा याद करो, क्लास में बताया था। जॉब ट्रैकर। लास्ट टू क्वेश्चन, आखिरी के दो क्वेश्चन बचे हैं। फिफ्टी एट। सी। वेरी गुड। लास्ट टू क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन है ये। सी। सी आंसर रहेगा इसका दोस्त। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। 59 का सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 60th क्वेश्चन। सी। यस। Okay, guys, so we have discussed all the question. I hope you have liked the session. So please share your experience कि आपको ये session कैसा लगा. Yes, in this session Linux questions were missing. तो Linux वाले question अपन जो next है session उसमें देख लेंगे. And okay, श्रद्धा, thank you. मॉक का PDF वीडियो देख लेना शोविक, PDF तो मुश्किल है। आई विल ट्राई टू शेयर द PDF ऑल्सो। ठीक है, सो मे बी कुछ हो सकता है, कोई मेरे से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन अपन ने स्किप किए थे, वो एक बार आप अपने एंड से देख लेना। ठीक है, इसमें यार ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 46 वाला। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हो सकता है कि एग्जाम में क्विक शॉट का क्वेश्चन आ जाए, या मर्ज शॉट का आ जाए, या आपका इसका आ जाए बबल शॉट, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। वी हैव डिस्कस दिस, तो प्लीज वॉच दोस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, हाँ, एग्जाम में आपके 5 ऑप्शंस होते हैं।